Hi guys, welcome to CET Mentors. My name is Keaton. In this video, I'm going to talk about your expected cutoff. We're also going to talk about normalization, and I'm also going to give you guys a little idea as far as the CET that has happened. मेरे ख्याल से the entire CET for 2020 was purely a game of strategy. To be very honest, because as I said earlier also, कितना mock दिया आपने, कितना मेहनत करा. I think मेरे ख्याल से it wasn't about your IQ or it wasn't about your mocks and all that. It was purely about your EQ and your strategy and predominantly आपका accuracy. So this is what I have always been saying. अगर आप puzzles के बारे में बात करोगे, जो भी workshops हमने करे थे, मैंने हर एक workshop में कहा था कि भाई puzzle से दूर रहो, puzzle से दूर रहो. There are certain institutes, they kind of give a lot of weightage towards puzzles and they say that puzzles are important. But again, पिछले 2 साल से now it's been proven that puzzles have always been problematic, right? So जो बच्चों ने पजल छोड़ा, आई थिंक दे आर एट रियली बेनिफिट. ऐसा नहीं था कि पूरा छोड़ना था, अगर आप एंड में भी करोगे, बट यार लेवल बहुत ज़्यादा ही टफ था. आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग दैट काइंड ऑफ अ लेवल एज फार एज द पजल्स आर कंसर्न. बट अगेन द कपल ऑफ स्ट्रैटेजीज, राइट, विच इज 60-60-30 वर्कड लाइक चार्म फॉर पीपल. इट एक्चुअली हेल्प लॉट ऑफ पीपल to kind of get that hold on the paper. Challenger level का जो हमारा मॉक है, वहाँ से कुछ questions आए थे. Now you might not feel that I'm exaggerating, but yeah, there are couple of sets puzzles के. They were not exactly there, but yeah, we could have same pattern का puzzles solved in the class and in the dashboard of like online program. So what it was kind of a similar, but again बहुत tough था puzzle, तो करना बात नहीं बनता था. So 143 का genuine attempt है. Okay, so RC का जो जुगाड़ मेथड था, I think जुगाड़ strategy worked very well for people for DI, visual reasoning and also for your reading comprehension. Trust me, जो बच्चा RC छोड़ता था हर एक मॉक में, वो बच्चा out of 15 round about 12 से 13 सही questions करके आया. This is what the feedback that I have. तो जितना भी, I mean, whatever strategies that I could tell you in the workshops and all, I think everything worked out very well. What is this? Puzzle छोड़ा, verbal फोड़ा, abstract की बचाई, genuine attempt expectation से ज़्यादा आया, great. LR टफ था, आपने जैसे strategy बोला same follow की fantastic. So strategy का ही game था यार, बाकी तो कुछ ऐसा था नहीं. So I've got a lot of feedback from students anyway. So I'm just looking at anything that can help. So yeah, I think this is it from my side. What I'm gonna do is now I'm quickly gonna what's a 145 to 150 का genuine attempt है, किसका है? Let's have a look at this. This is little interesting. So what is he saying? Puzzles at the start in all my mocks. ये बंदा puzzles हर बार लेता था mock में, but today took puzzles at the end and it really helped. Okay, great. So puzzles end में लिया तो attempt बढ़ गया. 145 to 150 का genuine attempt है. That's awesome. Fine. So this is just a kind of a quick overview that how strategies work. And again, strategies का मतलब होता है real strategies. ऐसे ही हवा में strategies नहीं बनती है. So ठीक है. I hope you won't mind me talking about this feedback. And ये feedback की वजह से वीडियो पे ज़्यादा dislikes ना आए. I'm just trying to help you guys. Just trying to tell you guys that कि the strategies helped. Now, moving ahead. Okay, so this is going to be the cutoff that I expect. Again, I am giving you a disclaimer कि यार ये है expected cutoff. I am not saying कि यही short होगा करके नहीं. Expected cutoff है trained analysis करने के बाद. I hope JB to get close at 99.94. Fine. So last year it was 99.93. I won't be surprised अगर ये 99.95 भी बन गया तो. But this is what I am hoping at. इसके नीचे नहीं जाएगा. सिडनम की अगर बात करेंगे 99.78 वही आपका पेटेंट रहेगा. एक यहाँ पे मेजर चेंज आएगा जो होगा आपका वेलिंगर. फॉर द फैक्ट केजे सोमा इज नॉट देयर, आई एक्सपेक्ट वेलिंगर टू क्लोज एट 99.60 से लेके 99.66 की रेंज में. ओके, दैट इज समथिंग आई एम एक्सपेक्टिंग. SIS दालमिया पुम्बा, ये तीनों भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं. आई थिंक उनका कट ऑफ थोड़ा स्लाइटली बढ़ेगा बिकॉज ऑफ कॉलेज नॉट बीइंग देयर, वन ऑफ द कॉलेज नॉट बीइंग देयर. तो ये जो है दिस इज गोइंग टू बी राउंड अबाउट 99.20 इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर SIS. इट कैन गो 10 ऑल्सो, ठीक है, जस्ट एन एक्सपेक्टेशन. दालमिया 99 कैन बी एट 98.90 एंड पुम्बा एट 98.90 और 99. दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग. दिस इज व्हाट हैज ऑलवेज बीन अ टिपिकल कट ऑफ फॉर योर कॉलेजेस. Okay, now let's move it with the scores. So again, this is my expected score as far as your cutoffs are concerned. ठीक है, अब मैं normalization के बारे में बात करूँगा पहले before we talk about anything. Now क्या normalization होगा? I am very sure normalization होगा and होना भी चाहिए. अगर आप अपना admit card देखोगे, admit card के पीछे point number 12 it says that यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस है. ऐसा नहीं बोलेंगे कि नॉर्मलाइजेशन होगा, दिल से दैट दिल इक्वेट योर स्कोर बिकॉज
अगर मैं लास्ट ईयर के बारे में बात करूं और अगर मैं इस साल के बारे में बात करूं 19 और 20 का अगर मैं कंपैरिजन करता हूं विज विज, तो डेफिनेटली आपका पेपर यहाँ पे टफ था। ठीक है, आपका पेपर यहाँ पे टफ था। अब कोई बोलेगा पेपर लेंदी था, कोई बोलेगा पेपर ऐसा था वैसा था, पर यार पेपर लेंदी भी हो गया तो भी टफ ही होता है और टफ पेपर भी टफ ही होता है। सिंपल सी बात है, मैंने पहले भी बोला था। ये पजल और ये पजल, ठीक है, मान लो ये पजल टफ है, क्यों, समझ में नहीं आ रहा, 10 मिनट में सॉल्व किया। ठीक है, ये पजल ईजी है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे मान लो पॉसिबिलिटी है, डेटा हिडन है, यहाँ पे डेटा गिवन है, फटाफट है, पर बहुत लेंदी है, ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, तो ड्रॉ करो, वर्कआउट करो, सब कुछ करो, ये भी 10 मिनट में हुआ। पर सर लेवल ऑफ डिफिकल्टी दोनों का सेम ही है, आप लेंदी बोले या टफ बोलो, वो फंडा तो सेम ही है, राइट। तो पेपर, आई अग्री दैट पेपर वॉज टफ, नो डाउट अबाउट इट। ये पहला मेरा लैंडस्केप है टू गिव यू द कट ऑफ, ये पहली चीज जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ मेरी दूसरा कंसिडरेशन क्या है। सेकेंड कंसिडरेशन इज दैट आई स्पोक टू स्टूडेंट्स जिन्होंने लास्ट ईयर 140 मारा, 143 मारा, 137, 130, ये रेंज के बच्चों से मैंने बात किया। ठीक है, दीज गाइज रिपीटेड दिस ईयर ऑल्सो, फाइन। तब उन्होंने बोला सर इस बारी मेरा स्लॉट 1 हो, स्लॉट 2 हो, स्लॉट 3 हो, स्लॉट 4 हो, उन्होंने कहा मेरा अटेम्प्ट इतना है, माई अटेम्प्ट इज राउंड अबाउट 140। तो 130 वाला बच्चे का अटेम्प्ट इस बार आया 128, 143 वाले का बच्चे का अटेम्प्ट 142 तक आया था, 143 तक आया था। तो इन बच्चों के अटेम्प्ट इस साल उतने ही रहे, समझा। तो पेपर टफ होने के बाद भी इन लोगों ने इतना अचीव करा। द पॉइंट इज दैट यहां पे अगर मैं बात करता हूं इनके अटेम्प्ट्स, राइट, जो भी इन्होंने अटेम्प्ट करा, ये लास्ट ईयर का इनका स्कोर था, लास्ट ईयर का स्कोर इनका भी अटेम्प्ट बन गया, तो डेफिनेटली इनकी 100% तो एक्यूरेसी नहीं आएगी, बराबर। तो इनका स्कोर इज गोना गो लिटिल डाउन, यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये अगेन मेरा कंपैरिजन है, बिकॉज लास्ट ईयर इन बच्चों का अटेम्प्ट ज्यादा था, जिसने 140 लाया लास्ट ईयर उसने का अटेम्प्ट राउंड अबाउट 160 प्लस था। तो अटेम्प्ट्स आर गोना गो डाउन, दे हैव एक्चुअली गॉन डाउन, एंड दैट इज द रीजन आई फील दैट द कट ऑफ इज गोना बी मोर और लेस ऑन अ सेम लेवल। ये पहली बात। अब दूसरी बात, एक नॉर्मलाइजेशन का भ्रम है, ये मेरे को पता चला आज 5 बजे 4 स्लॉट के बाद। एक बच्चे ने मुझे बोला कि सर पूना में वो एक बच्चे से मिला, वो बोलता उसका फ्रेंड था, बोलता कि यार मैं 120 क्वेश्चन ही करेगा। बोला क्यों? बोला सिंपल है, देख 120 क्वेश्चन अगर मैं करेगा ना तो मेरे कोचिंग में बोला है मेरे को 140 मेरा स्कोर आएगा और मैं जे भी जाएगा। आई वॉज सो ब्लडी शॉक्ड, आई वाज लाइक भाई इतना नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, ऐसा है तो हर कोई बच्चा 120 मार गया बोलेगा मैं जे भी जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो नॉर्मलाइजेशन 20 प्लस प्लस 25 प्लस प्लस मार्क्स नहीं देता। चलो मैंने माना, चलो अज्यूम करते हैं कि जो भी बाकी के कोचिंग वाले बोलते हैं वो सही है, मान लिया, चलो। तो यार ये भी तो बात बताओ ना बच्चों को कि अगर 120 से 140 जाता है तो 120 से ये नीचे भी तो जा सकता है, 90 पे भी तो आ सकता है, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर लेके जाएगा आपका स्कोर। अगर आपका स्कोर इक्वेट करना है तो नीचे भी तो जा सकता है। तो मेरे ख्याल से यार प्लीज़ ये भ्रम में मत रहना, तो ये सब चीज़ें काम नहीं आएगी। तो मैंने कहा कि पिछला जो बच्चा लोग था उनसे मैंने बात करा, उनका लास्ट ईयर का स्कोर जो था वो अभी उनका इस साल का अटेम्प्ट है, तो अटेम्प्ट्स हैव गॉन डाउन। तो अगर मैं 19 और 20 का बात करूं तो 19 का पेपर 20 का पेपर वॉज टफ, एक्चुअली इट वॉज टफ। लास्ट ईयर क्या था, लास्ट ईयर पजल्स ने गेम बिगाड़ा था पर बाकी के एरियाज वर डुएबल। इस बार ऐसा नहीं था, इस बार आपके पजल्स तो टफ थे बट यू कुड सी अ चेंज इन पैटर्न इन सम एरियाज ऑल्सो। द लेवल ऑफ डिफिकल्टी वॉज लिटिल हायर इन अदर एरियाज ऑल्सो, ठीक है। तो जैसे वर्बल इजी था पर एब्स्ट्रैक्ट ने बजा दी बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट थोड़ा हाई हो गया, कहीं कहीं पे वर्बल इजी था पर डीआई और क्वांट थोड़ा सा हाई हो गया, तो वो इक्वेट हो रहा था अच्छे से। पैटर्न नया था, एलओडी नहीं थी, ठीक है। फिर दूसरी बात पेपर थोड़ा लेंदी भी हो गया था, तो ये सबको मद्देनजर रखते हुए राइट आई थिंक ये जो होगा राइट द कट ऑफ दैट आई एम गिविंग यू राइट नाउ, आई थिंक दे आर गोना बी मोर और लेस ऑन अ सिमिलर लेवल, दैट्स व्हाट आई एम प्रेडिक्टिंग। तो अगर हम बात करेंगे आपके फाइनल कट ऑफ की, जेबी का जो रेंज जो मैं आपको दे सकता हूँ विच इज 99.94 परसेंटाइल का, जो मुझे लगता है आई एम अज्यूमिंग इट शुड बी अराउंड 141 से लेके 144। अगर 99.95 पे अगर ये क्लोज होता है तो डेफिनेटली ये 145 से लेके 148 तक ये क्रॉस करेगा। दिस कैन बी अरेंज फॉर 99.95, okay, but assuming that 99.94 can be a kind of a threshold or kind of a the last guy to get into the JB, this can be the cutoff, this can be the score for that person. 132 से लेके 135 is what Sydenham, 127 130 31 can be Wellinger, और ये जो तीनों जो these are like good colleges, ये इस कट ऑफ के बीच में खेलेंगे। I cannot be really precise out here, but definitely I can give you range 117 से लेके 121 तक you should be able to get these colleges. इसके नीचे let's just say राउंड अबाउट लाइक 105 वगैरह तक आपको IES वगैरह मिल जाएगा,
राइट, समथिंग लाइक दैट. सो गाइज अगेन मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये प्रेडिक्शन है. डोंट फ्रीक आउट, डोंट फील सैड, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड. एवरीथिंग विल बी क्लियर जब आपका रिजल्ट आएगा तब. ठीक है, एवरीथिंग विल बी क्लियर जब रिजल्ट आएगा तब. लास्ट ईयर मैंने बोला था यार लास्ट गाय टू गेट इनटू जमनालाल बजाज विल बी 138. ये मेरा प्रेडिक्शन था और एक्चुअल में वो बना था 144. ठीक है, तो मुझे अभी भी पता है इस वाले वीडियो पे लास्ट ईयर मेरे को 20% डिसलाइक आया था. तो गाइज इट्स जस्ट अ प्रेडिक्शन. आई एम गिविंग यू काइंड ऑफ अ बॉलपॉक नंबर, जस्ट अ रेंज, काइंड ऑफ अ रफ नंबर. सो डोंट वरी, थिंग्स विल बी क्लियर मोर on the result day. Fine. So yeah, that's it from my side, and thank you so much for all the feedback on the strategy front. Thank you so much, guys.